Sit very comfortably with your back straight. Your eyes are closed. Start looking inside. Watch your mind, watch your thoughts. Simply watch, not to indulge in any thought, in any activity of mind. Simply watch. As a neutral energy, you simply look. You have third eye. You yourself is third eye. You have full potential to keep this watching process continue. Simply watch. Do not have any identification with the thought, whether it is positive or negative. Do not have any identification. Disidentify yourself. Keep some distance from the mind, as you are not a mind. You are a seer of it. You simply see. Develop some distance from the mind. You have self-remembrance. You are not a mind. You are not a thought. You are a seer of them. You keep your true nature. And remember it. Meditation is a direct approach towards mind. It does not require any technique or thought. It does not require any method, any technique to focus this mind or any concentrating point. It does not require any technique. Such techniques or methods do not work in transforming the mind. We have to watch this mind. While living in our own true nature. I am a seer, I am a witness, I am an observer, I am a neutral energy, I am a seer. This watching process will help you to be thoughtless one day, which is full of bliss. That state is full of bliss, balance, harmony. When you become thoughtless, right thinking prevails, your wisdom prevails. This is a miraculous achievement, our own true nature. Simply watch. Utilize your third eye in the direction of self-discovery. Simply look whatever happening before you.
Meditation is a process, it's not a practice. While you are fully capable to see inside, simply, you have full potential to watch inside too. You have third eye to watch your own self. This special privilege has been provided to you by very birth, but you do not know it. Again and again you come back to your own true nature. You are a neutral energy. You are an observer. Remember it. And simply look inside. Again and again. Your homecoming will help you to be more and more happy, healthy, and wealthy in spirit. Ankar, Amin, Amen. Past is gone, future is unknown. Act, act, act. Act, oh my dears. Act in the present. Live in the present. You live in the present. You will be happy, healthy, and wealthy all the times if you live in the present. Jag jag, o manuwa jagri. Yesu avasar jagani aaya. Awake, awake, awake. In this very life, awaken yourself. Awake, simply awake. Awake towards your mind. Jag jag, o manuwa jagri. Yesu avasar jagani aaya. और कछु न सुनानी आया. तुझे केवल जगानी आया. जाग जाग ओ मनुआ जागरी. यीशु अवसर जगानी आया. यीशु अवसर जगानी आया. तेरो समय जागने को आया. जाग जाग ओ मनुआ जाग रे. तेरो समय वास्तविक जागरण जगराता है यहाँ माँ भगवती, माँ कुंडालिनी शक्ति का ये जागरण. तुम जागो भीतर. ये जागरण बाहर तो प्रतीक है, सिंबॉलिक है. वास्तविक रियल अवेयरनेस, रियल अवेकनिंग स्टेट lies inside within. Discover it and make your nature divine. Every soul is divine. Every human is divine. If he awakens inside too,
be the master of your mind and lead a blissful life. Respect your life. Respect your present moments. And drink more and more these vibrations, alpha waves, which will help you to awake more and more, to awake, arise more and more. To be happy, to be healthy, to be wealthy is your true nature. जाग 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 अरे मनुआ जाग रे. Oh my mind, awake. Oh my mind, awake. Transform yourself. We don't believe in conversion. We believe in transformation. Transform yourself. Then you will know the real wealth of life. जाग जाग ओ मनुआ जागरी, तेरो समय जागने को आया. जाग जाग ओ मनुआ जागरी, तेरो समय जागने को आया. जाग जाग ओ मनुआ जागरी, ये सो अवसर, ओ ये सो अवसर, ये सो अवसर जगानी आया. जाग जाग ओ मनुआ जागरी, तेरो समय जागने को आया. चुनाव मत करना. जब जब भी देखने के प्रोसेस में उतरना, चुनाव ना करना. क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव थॉट, दे बोथ आर कमिंग एंड गोइंग. यू सिंपली वॉच, सिंपली वॉच, वॉच, simply watch, and continuity in watching, constant watching will help you one day to be enlightened one. और किसी प्रकार का चुनाव, चॉइस मत करना. कोई डिसीजन मत लेना भीतर की राह पर. किसी प्रकार से भी एनालिसिस मत करना. क्या अच्छा क्या बुरा, कोई विश्लेषण ना करना, कोई चुनाव ना करना. सिंपली न्यूट्रल स्टेट में रह करके तुम देखते रहना. देखना अवेकनिंग स्टेट है. देखना एकमात्र एक्सपीरियंस है. देखना एकमात्र अनुभव है. देखना जारी रखना. देखना टूटे ना. देखना बिखरे ना माइंड के साथ. माइंड को देखना, डायरेक्ट देखना. डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मेडिटेशन. केवल देखना. साक्षी दृष्टा होकर के जो जानते हैं, जो सीयर विटनेस होकर के जीते हैं, उनको माइंड की किसी प्रकार की नेगेटिविटी छू नहीं सकती. सिम्टम्स माइंड के, माइंड रूपी डिजीज के तुम्हें बंधन में, तुम्हें पकड़ में नहीं ले सकते. अगर तुम समझ गए कि ये सब माइंड रूपी डिजीज के सिम्टम्स, ये केवल मात्र लक्षण हैं. लक्षणों का इलाज नहीं होता. इलाज डिजीज का होता है, बीमारी का होता है. बीमारी है माइंड, स्कैटर्ड माइंड, डिसइंटीग्रेटेड माइंड. एकमात्र बीमारी है. ये तब बीमारी दूर होती है जब तुम इससे हटते हो, इसके प्रति जागते हो, अपने को जानने लगते हो कि मैं हूं देखने वाला. मुझे कोई अधिकार नहीं है माइंड की एक्टिविटी में इंटरफियर करने का. माइंड की एक्टिविटी में इंटरफियरेंस मेरा अधिकार नहीं है.
मैं जैसे स्वतंत्र हूं ऐसे माइंड भी स्वतंत्र है, भले पास्ट में जाए फ्यूचर में जाए। आई हैव नॉट टू डिस्टर्ब इट, आई हैव नॉट टू इंटरफियर विद इट, आई हैव टू वॉच ओनली इट्स प्ले, इट्स एक्टिविटीज, इट्स डूइंग्स। माइंड इज अ डूअर, वी शुड नॉट have any control on it. We should not try to be controller of it. We have our own true nature to watch only. Awake, awake, awaken yourself is the real approach towards the mind. जाग जाग ओ मनुआ जागरी, ये सो अवसर जगानी आया। जाग जाग ओ मनुआ जागरी, ये सो अवसर जगानी आया। स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खुला है, स्पिरिचुअल क्लिनिक खुला है, स्पिरिचुअल आई क्लिनिक खुला है। नजर बनवा लीजिएगा भीतर की, इनर आई, इनर आई में जो ईगो रूपी कैटरैक्ट आ गया है, उसका ऑपरेशन इस इनर क्लिनिक में होगा। जो पर्दा, जो कर्टन इग्नोरेंस का माइंड के ऊपर आया है, उसका ऑपरेशन होता है मेडिटेशन के साथ। बहुत गजब फ्री क्लिनिक, फ्री हॉस्पिटल खुला है स्पिरिचुअल टच के लिए। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को डेवलप करना मटेरियल एस्पेक्ट के साथ साथ, यही तेरा एकमात्र ट्रू रिलीजन है, धर्म है। भीतर भी जगमगाना जैसे बाहर जगमगाते हो, तो तुम्हारी फैमिली लाइफ, तुम्हारी इंडिविजुअल लाइफ बहुत सुखद हो जाएगी, बहुत स्वस्थ हो जाएगी। माइंड के साथ जुड़ते ही घर में झगड़ा होता है, ईगो उठती है, अहम अहंकार का अंधेरा उठ खड़ा होता है। तुम एक्सपेक्ट करते हो, बच्चे माँ बाप से एक्सपेक्ट करते हैं, माँ बाप बच्चों से एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि भीतर जागरण नहीं, होश नहीं, सुरती नहीं। माइंड के साथ लग करके माइंड ही हो गए, और माइंड का धर्म है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्टेशन इज ए हिंड्रेंस टू हैप्पी लाइफ। आपने अपनी ड्यूटी बजाई, कर्तव्य निभाया, आपको अपने आप में खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि मैंने अपनी ड्यूटी निभाया, कर्तव्य निभाया। आगे वो निभाए ना निभाए उसकी मर्जी, मैं दोनों हालात में राजी, मैं अपने आप में संतुष्ट तृप्त, मैंने अपनी ड्यूटी निभाया। आई रिमेन ड्यूटीफुल इन माई लाइफ। दूसरा, ड्यूटीफुल हो ना हो मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना, अपने तक रहना। जैसे ही तुम दूसरों पर उतरते हो तुम दुखी हो जाता हो, जैसे तुम दूसरों से जुड़ते हो, एक्सपेक्ट करते हो, उससे सुख की चाहना करते हो, रिस्पेक्ट मांगते हो, क्योंकि आपने किया है, बहुत बहुत उपकार किया है उसके प्रति, अपनी संतान के प्रति, मित्र दोस्त के प्रति। उसने धोखा दिया है, धोखा नहीं दिया, आपने एक्सपेक्ट किया है, बदले में रिटर्न मांगा है। ये प्यार नहीं, प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं है। प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा जब जब गूंजता है तो उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, देना ही देना, लेना कछु नहीं है। ये भाव उस समय उठता है जब आप अपने तक रहते हैं, एकदम अपनी ओर जागे रहते हैं कि मैंने अपनी ड्यूटी निभाया, मैंने कर्तव्य निभाया, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सैटिस्फाइड। In this very life, you can remain happy, healthy all the times without any medicine if you don't have expectation. और expectation जैसी बीमारी को काटना अगर कोई चाहता है तो अंतर्मुखता संभाले, अपनी स्वतंत्रता संभाले, माइंड से स्वतंत्र होना। हर एक इंसान आज एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, मोहब्बत नहीं रही, एक्सपेक्टेशन रही, केवल मात्र व्यर्थ की आशाएं,
इंसान के माइंड को कितना कितना दुखद पूर्ण बना रहे हैं। ये बहिर्मुखी जीवन का लक्षण है। हम बहिर्मुखी, हम माइंड होकर के जी रहे हैं। हमें बियॉन्ड माइंड, फ्री ऑफ माइंड स्टेट नहीं मिला। हमें पता ही नहीं कैसे जीना है जीवन में। हमें मालूम ही नहीं जीवन में कैसे जीना है। ये तमाम परिणाम पॉजिटिविटी के परिणाम अपने आप उतरते हैं जब तुम थोड़ा भीतर की ओर जागते हो। तुम्हें कोई भीतर की ओर उन्मुख करने वाला, भीतर की ओर जगाने वाला, मन से थोड़ा स्वतंत्र होकर के रखने वाला, रहने वाला, मन से थोड़ा स्वतंत्र करने वाला कोई मिल जाए तो उस स्वतंत्रता को पहले प्राप्त करना, सब ओर से अवकाश प्राप्त करके, सब ओर से अवकाश प्राप्त करके स्वतंत्रता का आविष्कार करना। ये वाइब्रेशन का सब्जेक्ट है, किताबी नहीं, कथा का नहीं। वाइब्रेशन, एकमात्र वाइब्रेशन चाहिए, सानिध्य चाहिए, संगति चाहिए। केवल मात्र जागे पुरुष की कंपनी चाहिए, जिसके प्रति भगवान कृष्ण ने इशारा किया, अर्जुन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। किसी तत्वद्रष्टा, तत्वज्ञ पुरुष के द्वार पर, जागे पुरुष के द्वार पर जा अर्जुन, वहां तेरी डीप डिप्रेशन का इलाज होगा। कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई दवाई कितनी भी महंगी हो तुझे टेम्परेरी रिलीफ देगी, तुझको उस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं देगी। साइड इफेक्ट होंगे, मेडिसिन के ही नहीं बल्कि कंसंट्रेशन के भी। कंसंट्रेशन के साइड इफेक्ट तुम अर्जुन में देख लेना, शूरवीर बहादुर में देख लेना। कितना भय, शोक, मोह, कितनी नेगेटिविटी उतरी, एस्केपिस्ट हो गया। सिंपल प्रोसेस है मेडिटेशन का, उसे धारण कीजिए। अर्थात स्वयं जागिए, जानिए माइंड की एक्टिविटी को, माइंड की नेचर को, माइंड के स्वभाव को अच्छी तरह से समझिए। एक पल प्रति पल हमें अपने साथ जोड़ता हुआ पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, अनेकों कल्पनाएं जोड़ता है। पास्ट और फ्यूचर में जाना बुरा नहीं, वहाँ की सैर बुरी नहीं, आना जाना बुरा नहीं, रहना बुरा है। कदाचित भी ना रहना पास्ट में, नहीं तो एक्सपेक्टेशन और अधिक पकड़ेगी। कदाचित ना रहना फ्यूचर में, तुम्हें इनसिक्योरिटी और पकड़ेगी। इनसिक्योरिटी पकड़ती है जब तुम फ्यूचर में आते हो, तुम्हें एक्सपेक्टेशन पकड़ती है जब तुम पास्ट में आते हो। हम कह रहे थे पास्ट में कौवा जैसी बुद्धि होती है, फ्यूचर में बगुले जैसी बुद्धि होती है, परंतु हंस जैसी बुद्धि वर्तमान में होती है। प्रेजेंट मोमेंट, व्हेन यू लिव इन द प्रेजेंट देन यू आर लाइक डिवाइन। पास्ट में, फ्यूचर में माइंड सदा रहता है। हमें जब जब हमें इस बात का ध्यान हो जाए कि मैं पास्ट में चला गया, चली गई, समझ लेना मैं माइंड में जुड़ गया। फ्यूचर में ठीक उसी तरह जैसे जैसे फ्यूचर में विचरण करने लगे आप, समझ लेना माइंड के साथ जुड़ गए। फ्यूचर दुखदाई, पास्ट दुखदाई, सुखदाई है, आनंददायी है। एकमात्र प्रेजेंट, वर्तमान हमारा स्वभाव है, वर्तमान में हमारी अभिव्यक्ति है, वर्तमान में विराट जगमगाता है, वर्तमान जीने लायक है। वर्तमान का सुख उस समय हम गंवा बैठते हैं जब हम भविष्य की चिंता करने लगते हैं। हर पल हमारे पास वर्तमान सुख लेकर के खड़ा है, नेक्टर लेके खड़ा है, वरदान लेके खड़ा है, अमृतमय कलश लेके खड़ा है हमें सुखद स्वस्थ बनाने के लिए। परंतु हम अपने वर्तमान से, अपनी थर्ड आई से जुड़ते ही नहीं। हमें पता भी नहीं, मालूम भी नहीं। हम तो केवल बाहर ही बाहर धर्म कर्म करते हैं, हमें भीतर पता ही नहीं। उससे और अंधेरा अहंकार का, अभिमान का जुड़ता चला जाता है, और अधिक झगड़े, और अधिक टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन उतरता चला जाता है, और अधिक एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है, शंकाओं का ढेर लगता चला जाता, डाउटफुल होता जाता, सस्पिशियस माइंड और अधिक बढ़ता चला जाता है। जो जो तुम माइंड के साथ जुड़ता हो, तुम
कदाचित भी सुखद स्वस्थ नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत, कोई मेडिसिन हमें सुखद स्वस्थ नहीं बना सकती जब तक हम अपने वर्तमान में नहीं हैं, जब तक हम भीतर जागे नहीं हैं। और भीतर जागना, मन के प्रति जागना, अपने प्रति जागना, अपने में जागना, अपने आप से अपने आप में जागना क्या कठिन है। ये तो हमारा अपना है, हमारा अपना घर, अपना बंगला, अपना दशम द्वार, थर्ड आई, शिवनेत्र, दशम द्वार, 9 द्वारों से उतरी हुई सुरती बाहर की ओर, 9 द्वारों से उतरी हुई चेतना बाहर की ओर जैसे भटक रही है, उसे दशम द्वार में लाना अपने आप आती है। जब तुम कनेक्टेड होते हो अपने आप से, अपनी थर्ड आई से, तो सारी की सारी बिखरी हुई चेतना, बिखरी हुई एनर्जी, बिखरी हुई ऊर्जा, बिखरा हुआ ध्यान अपने आप वापस लौटता चला आता है। क्या गजब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर तुम थोड़ी प्यास, थोड़ी प्रायोरिटी अपने को जगाने की पैदा कर लो। मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है, तो भीतर क्यों ना आए। जीवन मंदिर के, आत्म मंदिर के बाहर क्यों खड़ा है, तू भीतर क्यों ना आए। लहरों में क्या रखा है पगले, ओ माय माइंड, ओ मेरे मनवा। लहरों में क्या रखा है पगले, हीरा तो गहरी पाई। लहरों में क्या रखा है पगले, हीरा तो गहरी पाई। जो भी डूबा प्रेम के रस में, जो भी डूबा ध्यान के रस में, उसने ही प्रभु को पाया। जो भी डूबा ध्यान की रस में, उसने ही प्रभु को पाया। जो भी डूबा प्रेम के रस में, उसने ही प्रभु को पाया। उसने ही स्वयं को पाया। जाग जाग ओ मनुआ जागरी, यीशु अवसर जगानी आया। यीशु अवसर जगानी आया। तेरो समय जागने को आया। तेरो समय जागने को आया। जाग जाग ओ मनुआ जागरी।